Welcome back to my channel. It's episode 27. In the previous episode, we have discussed valence bond theory, that is overlapping of valence atomic orbitals. कोई भी theory, any theory will be valid till it explain all the experimental facts. कोई भी theory तब तक acceptable होती है या valid होती है जब तक कि वो सारे experimental facts को correctly explain करे. The moment it failed to explain any facts derived from the experiments, it needs modification or improvement. जैसे ही कोई भी थ्योरी किसी भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को करेक्टली एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे, फेल हो जाए, तो उस थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ऐसा ही कुछ हुआ हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ. ये भी थ्योरी फेल्ड हो गई. कहाँ पे? To explain geometry of molecule and bond equivalence as determined by the experimental facts. एक्सपेरिमेंट से जो पता चला और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चला, दोनों मैच नहीं हुआ, इसलिए एक नया कंसेप्ट, एक नया थ्योरी का जन्म होता है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर लिनस पॉलिंग in 1931 as a modification of valence bond theory. Why? Because the valence bond theory failed to explain geometry of molecule and bond equivalence as determined by the experimental facts. एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको हम समझाएंगे कि क्यों ये फेल हो गई. Okay, let's see an example. This is boron trihydride, or it is called as borane. It is borane. We have one boron atom and 3 hydrogen atoms. Electronic configuration of borane is 1s2, 2s2, 2p1. In ground state, the distribution of electron is 1 lone pair in 2s orbital and 1 unpaired electron, single electron in 2p orbital. In excited state, this electron from this 2s orbital transfer to the next higher orbital, that is 2p orbital. So we have 3 single electron or 3 unpaired electrons. The process is called excitation. So what is excitation? Excitation is the process of transfer of one electron from an orbital to the next higher orbital. So we have to supply some energy. This process needs energy because this 2p is somehow in higher energy state than this 2s. There is very little energy gap. The energy gap is very little, but it is higher than 2s orbital. So excitation is an endothermic process. Endothermic process. So question may be asked in the examination that a process of excitation is endothermic or exothermic. So we will say it is endothermic. Okay. Boron have to form 3 single bonds with 3 hydrogens, so it needs 3 unpaired electrons. It has 3 unpaired electrons in excited state. Okay. So we have 3 hydrogen atoms. So as per valence bond theory, a valence atomic orbital containing single electron of an orbital overlaps with another atom's valence atomic orbital containing single electron in opposite spin. So you can see the spins are in hydrogen, valence orbital is in opposite. ठीक है? Okay. Now let's get them overlapped. अब देखेंगे हम लोग ओवरलैपिंग के बाद क्या ज्योमेट्री बनती है, क्या होता है. We have one px orbital, we have one py orbital and one 2s orbital of boron that will overlap with 3 1s orbital of hydrogen. This is px 2s overlap, px 1s overlap, this is py 1s overlap, and this is 2s and 1s overlap.
if you see the px and py orbitals are at 90 degree to each other like this. So the bond angle between this bond and this bond will be 90 degree, and the third bond that is found between 2s orbital and hydrogen angle will be around 45 degree. Okay. But what the experimental facts, what we get from experiments or observations? All boron hydrogen bonds are equivalent. The experiment says that all boron hydrogen bonds, जो 3 bonds है आपका, तीनों bonds क्या है? Equivalent. Equivalent का means they have same bond length, they have same bond energy, they have same bond angles between them. ठीक है. यहाँ पे क्या है हमारा? एक बॉन्ड बन रहा है एस पी ए, 2 बॉन्ड बन रहा है एस और पी ऑर्बिटल के बीच में, और एक बॉन्ड बन रहा है आपका एस और 2s के बीच में. तो बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगा, इन दोनों का इक्वल होगा. पी एक्स पी वाई ऑर्बिटल जो बना रहा है बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड इक्वल होगा बॉन्ड लेंथ, बट ये 2s है, इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा. ठीक है. बॉन्ड एंगल्स बिटवीन ऑल बोरोन बट वैलेंस बॉन्ड 3 से हम क्या सकते हैं कि बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री एंड 125 और 135 डिग्री. ठीक है. ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लानर एज पर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स. एक्सपेरिमेंट बताता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लानर है, पर यहाँ से ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा, कुछ अलग टाइप की ज्योमेट्री दिख रही है. So in this regard, the valence bond theory failed to explain the geometry of the molecule and bond equivalence. ठीक है. Let's see with one more example. So the next example is methane CH4. Let's see carbon's electronic configuration 1s2 2s2 2p2. In ground state, it has one paired electron in 2s orbital and p orbital. Okay. In excited state, one electron from 2 orbital will be transferred to the 2p orbitals. Okay. Here the spin of the electron that is transferred to the 2p orbital is like this, opposite to this or inverted. But when it got transferred to 2p orbital, it's got erect, मतलब positive half. Why such things happens? Why it turns its spin? Because of exchange energy. The concept of exchange energy already discussed in previous episodes. So what is exchange energy? The energy produced by exchange of electrons in orbitals of same energy. ज़्यादा मतलब अपोजिट सेम होगा, वो दूसरे से पोजीशन क्या करेगा? एक्सचेंज कर सकता है. सो द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है. सेम स्पिन का जितना ज़्यादा रहेगा सिंगल फील्ड, उतना ज़्यादा इसकी एक्सचेंज एनर्जी होगी. तो एनर्जी क्या करेगा? ये रिलीज करेगा. ड्यू टू एक्सचेंज इट रिलीजेस एनर्जी, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. एनर्जी जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. सो इट रिवर्स इट्स स्पिन इन 2p ऑर्बिटल. ओके. वी हैव हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स in all 1s orbitals. The spin should be opposite to carbon per overlapping happens only when the electrons are of opposite spin. So let's see what happened. This is carbon, this is its px orbital, this is its py orbital, this is its pz. Px, py, pz are all 90 degree to each other, and this spherical part is 2s orbital. The 4 hydrogen with 1s orbital overlaps with all 4 orbitals of carbon. Px, 1s,
py1s, pz1s and 2s 1s. So what is clearly visible that the three bond angles between px, py, py, pz and px, pz will be 90 degree each. तो थ्री बॉन्ड एंगल्स क्या होगा हमारा? थ्री बॉन्ड एंगल्स 90 degree and one bond angle that is 2ss 1 to 1. Okay, this is what the valence bond theory says, but the experimental facts, the real things, the actual thing, the real story is that all four CH bonds are equivalents. जो चार बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के, सारे क्या हैं? इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड एनर्जी. अगला फैक्ट क्या है? ऑल बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री. जो चारों बॉन्ड एंगल हमारे बन रहे हैं वो कितने हैं? 109.5 डिग्री. एंड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. वाई ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल? बिकॉज द बॉन्ड्स आर अलाइन इटसेल्फ और टेक अ पोजीशन such that they will be at a maximum distance from each other. So bond should be at maximum distance from each other. So this type of structure, tetrahedral, observed molecule having four bonds. जहाँ भी चार बॉन्ड होंगे वहाँ पे molecule कौन सा स्ट्रक्चर लेगा? टेट्राहेड्रल. Because in such type of structure the the bonds are at maximum distance so that the repulsion will be minimized. तो रिपल्शन को कम करने के लिए बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर रहते हैं. एक प्रॉपर पोजीशन होती है जहाँ पे दूरी मैक्सिमम हो और रिपल्शन उतना कम हो, तो उतना ज़्यादा क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स. दिस इज विच इज़ ट्रू, विच इज़ अ फैक्ट, बट दिस इज ऑब्जर्व फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सेज अ थ्योरी, what are the outcomes of a theory doesn't mean that they are true. They may be wrong. This is a theory. Theory may be itself wrong by a hearing, but this is experiments. Experiments will give result always true. Okay. So in order to explain those orbitals which give rise to these bond angles 109.5 degree, the Linus Pauling asked himself a question: what type of orbitals needed to give these results? That means those orbitals should be equivalents. Those orbitals should have same energy, same shape. Okay. So he come to an conclusion. उन्होंने एक निर्णय लिया, या वो उन्होंने एक बात सोची कि ऐसे कौन से ऑर्बिटल होंगे जो सेम टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल देंगे, बॉन्ड एनर्जी. तो वैसे ऑर्बिटल ओके. सो मिस्टर लिनस पॉलिंग केम टू अ कंक्लूजन. वो एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं. ठीक है. इन केस ऑफ BH3 बोरेन, द थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ बोरेन शुड बी इक्विवेलेंट्स. एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स दे आर इक्विवेलेंट्स. हाउ द इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स अचीव्ड? 1 2s orbital and 2 2p orbital gets hybridized. They undergo the process of hybridization. क्या होगा? वो लोग तीनों जो हैं ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, इंटरमिक्स करेंगे, तो 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हमको मिलेगा. तो यही से कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो अ थ्योरी. इट मे गेट रॉन्ग इन फ्यूचर्स. भविष्य में हो सकता है ये थ्योरी भी गलत हो जाए या कोई नई थ्योरी आए. दीज आर थ्योरी, दीज आर ऑल कंसेप्ट्स डेवलप्ड बाय मिस्टर लिनस पॉलिंग. So in case of BH3, boron forms 3 bond with hydrogen, so he needs 3 valence orbitals and should be equivalent.
all the three valence orbitals should be equivalent. To achieve equivalent valence orbitals, he introduced the concept of hybridization. The three valence original orbitals get intermixed, that is process of hybridization, to give three equivalent orbitals. Three equivalent orbitals. Okay, this is 2s, this is 2px, this is 2py, got intermixed to give a new set of orbitals that are called hybrid orbitals. So the number of orbital intermix will give same number of hybrid orbitals. 3 orbital mixed to give 3 hybrid orbitals. ठीक है. The shape, the energy will intermixed and give 3 equivalent hybrid orbitals. So the total energy of these orbitals will be equal to total energy of these 3 orbitals. Okay, and each hybrid orbitals have same energy. Here energy of these 2p orbital is equal but is higher than 2s orbital, but here all the 3 hybrid orbitals have equal energy, that is the energy of these 3 orbitals got redistributed in a way that it gives 3 equal energy hybrid orbitals. Okay, how the shape decided? Shape is decided by the shape of the original orbitals. It will give 3 types of hybrid orbital. One lobe is very small, then the other lobe in all the cases, and when the hybrid orbital makes bond, they arrange themselves in a shape or a structure to get themselves as far away from each other so that repulsion will be minimized. So in case of 3 bonds or trigonal planar structure, they have a bond angle of 120 degree due to minimization of repulsion and get themselves as far away from each other. Okay, let's see the example of CH4. So in case of methane, 1 2s orbital and 3 2p orbital get intermixed to give the process of hybridization. 4 equivalent orbitals, 1s 3p, so it is sp3. 3 p orbitals, 1 2 3 and 1 4s orbital. 1s 3 p orbitals give 4 sp3 orbitals. 1s and 3 p orbitals give 4 sp3 orbitals. These 4 hybrid orbitals are equivalent. Equivalent means having equal energy and same shape. When they are trying to make a bonds, जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इस टाइप का शेप लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल. ये 3D शेप है, आपको बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा, अब बुक में देख लेना या गूगल पे देख लेना. ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होगी 109.5 डिग्री. स्ट्रक्चर होगा या शेप आपका होगा टेट्राहेड्रल. ओके, तो अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे. क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे. हाइब्रिडाइजेशन क्या है एक्चुअली, ना एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है. इट इज़ नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक. ठीक है, सिर्फ क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. अगर आप टोटल एनर्जी करोगे, आप एनर्जी ऑफ 2s प्लस 3 एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल्स इक्वल टू 4 sp3 ऑर्बिटल्स. इन चारों का एनर्जी ऑर्बिटल्स का, इन चारों का एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा. एनर्जी ना निकलती है ना एनर्जी हमको देनी पड़ती है. सो इट इज़ नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक. लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन. Hybridization, it is the process of intermixing of 2 or more than 2 atomic orbitals to give a new set of orbitals called hybrid orbitals. Simple definition है आपका. Point number 1, only degenerate atomic orbitals takes part in hybridization. So only those atomic orbitals which are degenerate. Degenerate means have the same energy or
सिमिलर एनर्जी, थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस है एनर्जी का तो चलेगा, ठीक है, बट एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ हाई डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो एनर्जी शुड बी सेम और सिमिलर। ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड नॉट इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स पार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ना कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स डोंट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, इट इज atomic orbitals that takes part in hybridization. Third point is hybrid orbitals are atomic orbitals and not molecular orbitals. Hybrid orbitals are क्या है हमारा, atomic orbital है ना कि molecular orbitals, ठीक है, important point है, नोट करेंगे। फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशंस। तो जितना नंबर होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो टेक पार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उतना ही नंबर क्या होगा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, वो भी 4 ही बनेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा हाइब्रिडेशन इज नाइदर एंडोथर्मिक नॉट एक्सोथर्मिक। मैंने पहले बताया था हाइब्रिडेशन क्या है, ना तो एंडोथर्मिक है ना ही एक्सोथर्मिक है। इट इज सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी among ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। अगला पॉइंट है हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स में टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपका ऑर्बिटल हाफ फील्ड है जनरली जो होता है हमारा, तो टेक्स पार्ट करेगा हाइब्रिडेशन में। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का फुल फील्ड है मतलब क्या है, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी रहेगा तो भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा, मतलब इन्वॉल्व करेगा। वैकेंट ऑर्बिटल्स कहाँ पे पार्ट करते हैं हमारा, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहाँ बनता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखेंगे हम लोग मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमारा क्या होता है, मेटल्स का ऑर्बिटल क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो वैकेंट होता है वहाँ पे लिगेंड हमारा अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डालता है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल होगा वो वैकेंट होगा। इन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम शेप, साइज एंड एनर्जी। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे बने हैं सबके शेप, साइज और एनर्जी क्या होगी हमारी, सेम होगी, मतलब दे आर इक्विवेलेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है। को नोट कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स। Shape of hybrid orbital is same as that of p orbital, but one lobe is bigger than the other. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होगा हमारा किसके जैसा होगा, p ऑर्बिटल के शेप के जैसा होगा। एक फ़र्क होगा कि एक लोब इसका बड़ा होगा, एक लोब छोटा होगा, लाइक दिस, ठीक है। शेप क्या होगा, डम्बल शेप जस्ट लाइक ऑफ p ऑर्बिटल, बस वन लोब विल बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ वन लोब इज ग्रेटर देन द अदर। Extent of overlapping is greater in the case of hybrid orbital than in the case of atomic orbitals. तो जब ओवरलैपिंग होएगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेगा तो उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या होता है हमारा प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ओवरलैपिंग इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म बेटर ओवरलैपिंग देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट, ठीक है। हाइब्रिडेशन कब होगा आपका, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में नहीं होता है, इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विद द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन एंड प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपेल्स ईच अदर सो दे कीप देमसेल्फ एज फार एज पॉसिबल। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में during the formation of bond they repels each other, so they keep themselves as far as possible to minimize the repulsion. Hybrid orbitals decide geometry of the molecules. Molecules का geometry कौन डिसाइड करता है, hybrid orbitals, ठीक है। by taking position as far as possible, जितना दूर रह सके एक दूसरे से हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना दूर रहेगा,
अकॉर्डिंगली उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होगी, कौन तरह का स्ट्रक्चर लेता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा हमारा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा वो बनाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग द नेक्स्ट टॉपिक इन हाइब्रिडेशन इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला टाइप हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स 2, 1s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू गिव ए 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये ऐसा आके क्या हुआ, इनसे इंटरमिक्स हुआ, इस टाइप का आपको शेप मिलेगा। ये 1sp और ये 1sp, इसको मैंने अलग करके दिखा दिया है। ठीक है, एक 1sp और दूसरा 1sp। ठीक है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp ऑर्बिटल, ये ऐसा शेप आपको मिलेगा। क्या है ये, लीनियर है। ठीक है, सो द 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपेल्स ईच अदर सो दे कीप देमसेल्फ एज फार एज पॉसिबल, सो दे टेक द शेप ऑफ लीनियर शेप, सो दे मिनिमाइज द रिपल्शन। ओके, लेट द एग्जाम्पल ऑफ शेप क्या होगा हमारा, लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा, लीनियर शेप में बॉन्ड एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। एग्जाम्पल है BeH2, BeCl2, CO2, C2H2 मतलब अल्काइन है, और CH2। पहला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं बेरिलियम BeH2 का। ठीक है, बेरिलियम का ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p 0 मतलब p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्राउंड स्टेट में अरेंजमेंट क्या होगा, एक आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, लोन पेयर इसमें 2s में, और 2p खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल है 2p। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जंप करेगा 2p में, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये कहाँ चला जाएगा आपका, वैकेंट ऑर्बिटल 2p में चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 2s और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 2p। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, दिस इज बेरिलियम लाइक दिस, 2 sp hybrid orbitals, we have 2 hydrogens, 1s orbital and 1s orbital। ठीक है, बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, sps बॉन्ड, यहाँ भी sps बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड एंगल 180, शेप क्या होगा, लीनियर। ओके, इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। sp में we have a molecule CO2. CO2 has this type of structure, 1 double bond with this oxygen, 1 double bond with this oxygen, 2 pi bonds and 2 sigma bond. Okay, 2 atoms can form only 1 sigma bond with each other. 2 एटम आपस में एक ही सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा होगा, अगला क्या होगा, पाई होगा। यहाँ भी एक ही सिग्मा होगा और अगला क्या होगा, पाई होगा। तो कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो हम जानते हैं कि ओनली हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे वो भी कितने होंगे, 2। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p2 ग्राउंड स्टेट में ऐसा होगा। एक्साइटेड स्टेट में एक ट्रांसफर होएगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। ठीक है, मगर हाइब्रिडेशन किसका होगा, सिर्फ 2 का होगा, वह s से होगा और p से होगा। ठीक है, s वाला हमेशा इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडेशन में। ठीक है, तो एक s और एक p, मान लीजिए लेट्स इट इज px। ठीक है, एक px और एक s मिलके sp हाइब्रिडेशन आपको मिल गया। ऑक्सीजन का क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, 2 लोन पेयर है और 2 अनपेयर है, तो यही 2 अनपेयर क्या बनाएगा, आपका बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। ठीक है, 2 बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन का, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। ठीक है, ये कार्बन का 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बाकी 2 प्योर p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये 2 आपका प्योर p ऑर्बिटल है, py और pz। ठीक है, ये एक py हो गया और ये एक pz ऑर्बिटल हो गया। ठीक है,
हमने माना था क्या, S और एक PX, ठीक है। तो जब S के साथ PX मिला है तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के PX के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया sp-px, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ sp-px। तो इस ऑक्सीजन में क्या बच गया हमारे पास, या तो pz होगा या px तो हो गया py और pz इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। एक py के साथ ये एक py क्या बनाएगा अपना, लेटरल ओवरलैपिंग के साथ पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये हमारा पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पे एक। दूसरा ऑक्सीजन px तो बना लिया क्या, सिग्मा बॉन्ड, py तो कार्बन का खाली है नहीं, वो py कहाँ चला गया, दूसरे ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बन गया। तो क्या बचा यहाँ पे खाली कार्बन का pz, तो ऑक्सीजन का कौन सा इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, pz, ठीक है। तो py ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर रहेगा, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ पे रहेगा, py में, ठीक है। समझेंगे इस चीज़ को अच्छे से। sp में हमने माना कि px था तो sp-x हो गया, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड किससे बनाएगा, px के साथ, इधर भी px के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बच गया py-pz, यहाँ भी बच गया py-pz। इस py के साथ ये वाला ऑक्सीजन अगर लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा कार्बन का pz। तब pz के साथ कौन बनाएगा लेटरल ओवरलैपिंग, pz ही बनाएगा। तो इस ऑक्सीजन का कौन सा यूज होगा, pz ऑर्बिटल होगा। तो लोन पेयर कहाँ रहेगा इसका, px में, और इसका लोन पेयर कहाँ रहेगा आपका, pz में, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया तो जो बच गया उसमें लोन पेयर चला जाएगा, बाकी आपका, ठीक है। तो ये एग्जांपल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 मॉलिक्यूल में क्या हो गया हमारा, sp हाइब्रिडाइजेशन। शेप क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर। बॉन्ड एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा देखेंगे इसी में, sp में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा C2H2, मतलब इथाइन या इथाइलिन। कैसा स्ट्रक्चर होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक सिंगल। कार्बन कितना बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड इस कार्बन से, 1 बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए इसका। हमने कहा कि 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो एक हो गया आपका, फर्ज कीजिए ये सिग्मा हो गया, या बीच वाला सिग्मा हो गया, ये पाई और ये पाई, ठीक है। एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हमेशा क्या होगा, वो सिग्मा बॉन्ड रहेगा। तो इस कार्बन का 1 सिग्मा 2 सिग्मा मतलब sp, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या हो गया हमारा, sp, ठीक है। तो ये हमारा 2 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ, क्या बन गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हो गया 2, और 2 क्या हो गया, एक py और एक pz, और 2 हाइड्रोजन है हमारा यहाँ पे, ठीक है। फर्ज कीजिए कि ये आपका py है और ये आपका pz है। इन द सेम मैनर ये आपका pz है, pz के साथ ओवरलैप करेगा, और py के साथ ओवरलैप करेगा। इसका मतलब हुआ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कौन सा है, px, s और px के बीच में हाइब्रिडेशन हुआ है। py-pz दोनों का अनटच्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो शेप कैसा होगा हमारा, शेप हो जाएगा लीनियर, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा एज यूजुअल 180 डिग्री, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगला एग्जांपल है हमारा NO2+, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस चार्ज आ गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आपका यहाँ से, ये हो गया 2s2 और 2p3, ठीक है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कब बच गया, ये बच गया आपका, ठीक है। NO2+ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपका बच गया ये। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहाँ ट्रांसफ़र होगा एक्साइटेड स्टेट में। तो ये आपका 1 1 1 1, ठीक है।
ये हो गया एक्साइटेशन, ठीक है। तो आपका हो गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2 डबल बॉन्ड इधर, 1 डबल बॉन्ड इधर, 1 डबल बॉन्ड इधर और एक नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया था प्रीवियस एपिसोड्स में, वहाँ से हमने आपको सिखाया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, वहाँ पढ़ेंगे, पढ़ा होगा तो आपको जानने होंगे कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है NO2 प्लस का। ठीक है। डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। तो इस नाइट्रोजन का कितना सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय दिस नाइट्रोजन। सो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp शेप लीनियर बॉन्ड एंगल 180। ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा हमारा sp हाइब्रिडेशन। ठीक है। बच गया 2 py pz जो भी है, 1 पाई बॉन्ड ये बनाएगा, 1 पाई बॉन्ड ये बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। तो NO2 प्लस में पूछेगा क्या है हाइब्रिडेशन भाई, तो sp हाइब्रिडेशन है, क्वेश्चन अक्सर पूछता है। NO2 प्लस में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, तो sp। शेप कैसा होगा, तो लीनियर, बॉन्ड एंगल होगा तो 180 डिग्री। ठीक है। याद रखें हाइब्रिडेशन किसका होगा, सिर्फ सेंट्रल एटम का होगा, इन दोनों का नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा हाइब्रिडेशन, सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है। अब हम जो भी अभी हम लोग देख रहे हैं हाइब्रिडेशन, सिर्फ देख रहे हैं किसका, बिना लोन पेयर वाले का, विदाउट लोन पेयर्स, सेंट्रल एटम विदाउट हैविंग एनी लोन पेयर्स। लोन पेयर्स अगर रहेगा तो शेप चेंज होगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लोन पेयर वाला एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी सिर्फ क्या देखेंगे हम लोग, बिना लोन पेयर वाला एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा मेरे एपिसोड्स के अंदर से ही आएगा, बाहर से आएगा नहीं। ठीक है। सारे सवाल मैं आपको करा दूंगा, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं, तो कोई स्कोप नहीं बचेगा कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है। तो रेगुलरली आप एपिसोड वाइज आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बाकी का हाइब्रिडेशन देखेंगे, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। ठीक है। डिटेल में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।